नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathore and you are watching your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 31 to 35 of Surah Al-Anbiya of the 17th chapter of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the order of the God. And Allah the Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإلينا ترجعون صدق الله العظيم. And now we are going to the second segment of our program, in which we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse in two words. And you are requested to listen to me carefully as well as repeat with me for better achievement of fluent recitation of Holy Quran. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا
वजअलना फीहा फीहा फिजाजन फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम सुबुलन लअल्लहुम यहतदून यहतदून वजअलना अस्समाअ वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़ा सक़फ़न महफ़ूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिदून मुअरिदून। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून फी फलकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। ये जो गोल ता नजर आ रही है वक्फ करेंगे तो ये ता हा में तब्दील हो जाती है और हा को हम साउंड करते हैं फितना और मिलाकर पढ़ें तो फिर ता को ता ही प्रोनाउंस करेंगे। मसलन फितनतन व इलैना, फिर ता को हम वाव में मिलेंगे और ता की साउंड को ता ही प्रोड्यूस करेंगे। वक्फ करेंगे तो ता को हा में बदल देते हैं। फितना व इलैना तुरजाऊन व इलैना तुरजाऊन। Dear viewer, this is the third and final segment of our program in which we are showing these verses on your television screen, first in Arabic calligraphic as well as then in Romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets.
And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ इन उर्दू, और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि लोगों के बोझ से जमीन हिलने और झुकने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चले. In English, and we put anchors in the earth, lest it should move away with them, and we made therein wide pathways, that haply they may be guided. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. इन उर्दू, और आसमान को महफूज छत बनाया, उस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं. In English, and we made the heaven a roof, well protected, and they are averters from its signs. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. In Roman, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. इन उर्दू, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया. ये सब यानी सूरज और चांद और सितारे आसमान में इस तरह चलते हैं गोया तैर रहे हैं. And it is He who created the night and the day and the sun and the moon. Each one is floating in a circumference. وما جعلنا لبشر من قبل
قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون इन उर्दू और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा, भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? And we made not before you for any man to live forever in the world. Will they then, if you pass away, live forever? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. In Roman, وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. इन उर्दू, हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं और तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे. In English, every soul is to taste death, and we prove you by evil and good for trial, and to us you are to return. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में आप जानते हैं कि हम मुख्तसर से टाइम में कुरान की इन आयत को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करते हैं. अल्लाह कुरान का एक एक लफ्ज़ अपने अंदर मानी की समंदर समो दिया करता है, लिहाजा फ़कत कोशिश है कि इनके मतालीब और मफाहिम तर्जमे से हट के कदरे थोड़ा सा सहूलत के साथ और अपनी ही ज़बान में आप जान सकें, समझ सकें. इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी तौहीद की निशानियां बयान फरमाई है. रब ने फरमाया कि ये ज़मीन को हमने स्टेबल किया है, इसको हमवार किया है, इसलिए कि इस पर हमने अजीम शान पहाड़ रख दिए हैं. और आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम जब छत बनाते हैं या कोई चीज़ रखते हैं तो उसको सरियों के ज़रिए बांधा करते हैं. बेआइन ही इसी तरह अल्लाह की ये पहाड़ कीले हैं कि जो इसने ज़मीन पर ठोक दिए हैं, इससे ज़मीन स्टेबल हो गई है और हमें चलना फिरना आसान है. अदरवाइज़ अगर सारे पहाड़ी सिलसिला होता तो हम हर वक्त या तो तैरते या फिर ये कि पहाड़ों पर कभी ऊपर जाते कभी नीचे जाते. किस कदर मुश्किल ज़िंदगी हो जाती. वो लोग जो पहाड़ों और गारों में रहा करते हैं उनसे जाकर पूछिए कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है. आज हम हमवार ज़मीन पर चल रहे हैं तो ये रब्बे ज़ुल जलाल ने हमारे लिए बनाई है. और फिर रब फरमाता है कि हमने आसमान को एक छत की मानिंद बना दिया है तो ये यकीनन ये आसमान साहिबान है. ये नीली रंग की नीलगू चादर हद्दे निज़ार तक फैली हुई नजर आ रही है. आप देखिए, आज अब झोंपड़ा बनाना चाहते हैं, पहले पिलर लगाया करते हैं, फिर वो झोंपड़ा स्टेबल होता है. और घर बनाए, महल्लात बनाए तो आप जानते हैं पिलर्स की जरूरत हुआ करती है. नीचे हम फुटिंग्स करते हैं, बेसमेंट बनाते हैं और उसके बाद उसकी प्लिंथ बनाकर फिर ऊपर चढ़ाते हैं. लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की शान कुदरत देखिए कि ये आसमान हद्दे निगाह तक फैला हुआ है, न कोई पिलर है न कोई बीम है. और इस आसमान पे जो बादल तैर रहे हैं ये लाखों टन वजनी वाटर रिजर्वायर से भरे हुए हैं. ये टैंक्स हैं जो आसमानों पर फैल रही हैं. तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां है. यकीनन इसलिए हम कहते हैं वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि कोई उसका हमसर नहीं है, कोई उसका मुकाबिल नहीं है. और फिर फरमाया कि वही है जिसने
तुम्हारे लिए लैल और नहार की गर्दिश का निज़ाम रखा, दिन बनाया, रात बनाई। अगर एक रात ही होती तो फिर तुम दिन की रोशनी को किस तरह पाते? सूरज ना होता तो इन फलों में क्लोरोफिल किस तरह आता, जिंदगी किस तरह आती, ताजगी किस तरह आती? रात ना होती, चांद ना होता तो चांद की किरणें पड़ती हैं तो जायका आता है, तो इन फलों में जायका किस तरह आता? हे इंसान, हमने तुझे चलाने के लिए, सोने के लिए रात अता फरमाई और मेहनत मुशक्क़त जिद्दोजहद के लिए दिन अता फरमाया, और इन्हीं दिन और रात के अय्याम में फ़कत 5 औक़ात में अपनी इबादत का हुक्म दिया है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें रब्बे ज़ुल जलाल की इन निशानियों को, तौहीद की इन दलाइल को, इन एविडेंस को समझ कर और फिर रब्बे ज़ुल जलाल की प्रेज़ करने की, उसकी हम्द व सना बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़िन